Bismillahirrahmanirrahim. My name is Munazza Tariq and my qualification is MPhil Zoology. I welcome all of you in online video lectures at the Standard Girls College with the Islamic greeting Assalamu alaikum. I am your biology teacher. I belong to the Department of Zoology and I am going to tell you about the contents of the biology book of the first year. Actually, you have chosen the program FSC Pre-Medical. Pre-Medical, why it is called so? Because you have to pass out that examination before going to the मेडिकल यूनिवर्सिटी. ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने सबसे पहले एफएससी को क्लियर करना है, देन आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो सकेगा. ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि एफएससी में आपने सिर्फ और सिर्फ जो क्रैमिंग नहीं करनी है, आपने बड़ा कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है, क्योंकि एफएससी के फौरी बाद आपने एक एग्ज़ाम पास करना होता है जिसे हम कहते हैं एमडी-कैट, मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट. ठीक है, तो हम इंशाल्लाह आपको साथ साथ जो है एमडी-कैट के लिए भी तैयार करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद जो है यही है कि जो एम आप सेट कर आएँ वो आपका फुलफिल ज़रूर हो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से. तो बायोलॉजी जो है वो आपकी फर्स्ट ईयर की बहुत कम्प्रिहेंसिव है. सबसे ज़्यादा सिलेबस अगर बात करें तो वो बायोलॉजी का ही है. बायोलॉजी की जो आपकी बुक है उसमें टोटल 14 चैप्टर्स हैं. दैट वाज मोर देन इनफ. ठीक है, तो 14 चैप्टर्स हैं और इन्हीं को, और ये 14 चैप्टर्स ना तो आपके फिज़िक्स के हैं ना ही आपकी केमिस्ट्री के हैं. इसका मतलब है कि आपको सबसे ज़्यादा जो मेहनत है वो बायोलॉजी में ही करनी पड़ती है. और वैसे भी मेहनत करनी भी चाहिए, क्योंकि आपके जो एमडी-कैट का 70% जो पोर्शन है वो आपका बायोलॉजी से ही आना है. ठीक है, तो ऑल ऑफ यू मस्ट हैव इंटरेस्ट इन बायोलॉजी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल introduce you about the contents, chapter names of the first year biology book. The first chapter is introduction. That introduction is basically about biology, what is life, different definitions are present in this chapter which I will teach you in further lectures. Then second chapter is biological molecules. Biological molecules, in which you will come to know about different molecules of life, carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids. And the third chapter is enzymes, which is quite little chapter and heart favorite of most of the students because it is easy to understand the chapter. And fourth chapter is the cell, in which you will come to know the basic structure of cell and cell organelle. ठीक है, इसके अंदर आप different cell और cell की organelles के बारे में पढ़ेंगे. fifth chapter is variety of life. Variety of life. वैरायटी अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइफ की वैरायटी है, आइदर वो प्लांट्स हैं, वो एनिमल्स हैं, वो फंजाई है, वो बैक्टीरिया है, आप उन सबको इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. उसके बाद चैप्टर नंबर 6 जो है वो हम कहते हैं कि इसमें हमारे पास आता है किंगडम प्रोकैरियोटा. किंगडम प्रोकैरियोटा, जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया आ जाते हैं. और किंगडम प्रोकैरियोटा का पुराना नेम जो था वो था किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा. देन सेवंथ चैप्टर इज किंगडम प्रोटिस्टा. इट्स ओल्डर नेम इज प्रोटोक्टिस्टा. प्रोटोक्टिस्टा, in which you will come to know about protozoans, amoeba, paramecium and etc. Eighth chapter is fungi, in which you will come to know about classification of different fungi. Ninth chapter is very long and comprehensive chapter is kingdom plantae. 10th chapter is kingdom animalia. These two chapters are
most lengthy chapters of the whole biology book, and major portion of the paper also come from Kingdom Plantae, and most of the students found it difficult, but inshallah you will learn it easily. 11th chapter is bioenergetics. Bioenergetics. 12th chapter is about nutrition. 13th chapter is about gaseous exchange in animals. 14th chapter is about transport of gases in both plants and animals. So this is the list of chapters which is present in your FSC pre-medical book. First chapter is about introduction, biological molecules, then enzymes, then the cell, the variety of life, kingdom Prokaryota, kingdom Protista, fungi, kingdom Plantae, kingdom Animalia, bioenergetics, nutrition, gaseous exchange and transport. Now I will going to tell you about the paper pattern scheme. ठीक है, आप सबको जो है पेपर पैटर्न की स्कीम का ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे चैप्टर्स को प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं जो कि शायद उनमें से लॉन्ग आने ही नहीं है. ठीक है, तो इसलिए जब बोर्ड की तरफ से कोई स्कीम आ जाती है तो आपको उसी को फॉलो करना चाहिए, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है कि एक आप अच्छा स्कोर जो है वो FSC में गेन कर सके. तो पेपर पैटर्न के हवाले से पेपर स्कीम ऑफ बायोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, जिसे आप ऑब्जेक्टिव पार्ट कहते हैं, इसमें बेसिकली ज़्यादातर जो है वो MCQs पोर्शन होता है, इसमें MCQs ही आते हैं. और ये MCQs जो हैं ये आपके पास होते हैं 17 मार्क्स के. ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमारे पास इसमें सिर्फ और सिर्फ MCQs आते हैं, और वो MCQs कितने मार्क्स के होंगे? 17 मार्क्स. देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आएंगे 12 शॉर्ट क्वेश्चंस, और आपने उसमें से अटेम्प्ट करने हैं 8. फिर हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये भी अगेन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का ही है, और इसमें भी आपको 12 में से आपने अटेम्प्ट करने हैं 8. फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का ही है, और इसमें भी आपने 12 में से, इसमें आपने 9 में से अटेम्प्ट करने हैं 6. ठीक है, तो ये इस तरह से आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे. देन हमारे पास आ जाते हैं, ये आपके 3 क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हैं. देन आपने अटेम्प्ट करने, आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे. अच्छा जी, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे इसमें आपको डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आएंगे कि डिफरेंशिएट पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी. तो मोस्टली स्टूडेंट्स को एग्जैक्ट डेफिनेशन तो आती होती है पॉपुलेशन और कम्युनिटी की, लेकिन उनको उसमें डिफरेंशिएट करना नहीं आ रहा होता, मींस कंपैरिजन की फॉर्म में उन्हें लिखना नहीं आ रहा होता. तो इंशाल्लाह आपको साथ साथ हम डिफरेंसेस भी बताएंगे. इसमें कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस भी होते हैं, व्हाई इट इज़ कॉल्ड सो, व्हाई इट इज़ कॉल्ड सो. ठीक है, तो दिस एंड दैट, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपने करने हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी भी साथ साथ करनी है. ठीक है, तो इसलिए ये शॉर्ट क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि वाओ इतने ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन, तो इट्स अ क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क. देन लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, तो इसमें आपके पास A पार्ट, B पार्ट होते हैं, A पार्ट, B पार्ट, और ये भी पेयरिंग जो है ये बोर्ड की तरफ से ही आती है कि किस चैप्टर की किसके साथ पेयरिंग होगी. ठीक है, तो इसमें आपको, चूँकि आप देख सकते हैं कि ये 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं. 3 आउट ऑफ 5 जो है वो आपने अटैम्प्ट करने हैं. ठीक है, तो इनकी फर्दर पेयरिंग क्या है ये आपको मैं बता देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 में
जो है हम कहते हैं, चलें 1 और 14, ठीक है, यानी चैप्टर नंबर 1 में से एक लॉन्ग आएगा और चैप्टर नंबर 14 में से एक लॉन्ग आएगा। देन चैप्टर नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें जो है हम कहते हैं कि 2 and 8। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड 8 इज फंजाई, ठीक है। तो आपने इन दोनों को, ये पेयरिंग बताने का मकसद ही यही है कि जब आप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर प्रिपेयर कर लें तो काइंडली फौरी तौर पर आपको फंजाई वाला चैप्टर भी प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको अटेम्प्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, तो आपको इन दोनों चैप्टर्स पर कमांड होनी चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपके पास पेयरिंग आती है चैप्टर नंबर 4 and 12। आप देख सकते हैं 4th चैप्टर इज सेल एंड द 12th चैप्टर इज न्यूट्रिशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास पेयरिंग आ जाती है 5 and 11, ठीक है। 5 हमारे पास है वैरायटी ऑफ लाइफ एंड 11 इज बायो एनर्जेटिक्स एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज 6 + 9 मीन्स चैप्टर नंबर 6 किंगडम प्रोकैरियोटा एंड 9 इज किंगडम प्लांटी, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने आपको पूरा जो रिसेंटली ये 2020 की जो है ये पेयरिंग स्कीम जो है वो गुजरांवाला बोर्ड, ये बल्कि सारे पंजाब के बोर्ड्स की यही स्कीम है, ठीक है। तो आपने इस पेयरिंग स्कीम को जहन में रखना है प्रिपरेशन करते हुए। जब भी स्टूडेंट्स देख लें कि उनको कौन से चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गए हैं, ये जिस पे उनकी कमांड अच्छी है, वो उन्हीं को प्रिपेयर करें, ठीक है। तो पहले दिन पेपर पैटर्न बताने का मकसद ही यही होता है कि स्टूडेंट उसको अपने बुक के फर्स्ट पेज पर लगा लें, और ताकि वो तैयारी करते हुए उन्हें उनके जहन में ये रहे कि उन्होंने किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो आपने MCQs के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो इंशाल्लाह हम साथ साथ आपको बताते रहेंगे कि यहाँ से MCQs आता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। थैंक यू।